Good afternoon, all. Good morning, good afternoon. Good afternoon. Good Good afternoon, afternoon. sir. कैसे हैं आप सब? बढ़िया. How are you Yes, guys? Is everybody good? yes, sir. So, we were doing like a trigonometry part, right? So let's start with trigonometry today. The few of the questions or few of the type of questions were left, and we haven't discussed. I have given you some homework as well. Question number 9 and question number 10. Please tell me, did you all get the answer? Yes, sir. Is whiteboard visible to you all? Please check. Whiteboard is visible, right? That means the slides are visible to you guys. Tell me. Yes, sir. Okay, so this question was homework. Now tell me who got the answer. Who has got this answer? Question number 9. Tell me. Sir, option A is the answer. Okay, option A is the answer for everybody. Please check. Yes, sir. Has everyone got the same answer? Please check. Okay, sir. Option Yes, A, sir. right? Option A. Yes, sir. Everyone. Will I have to solve this question or is it is okay? Will I have to solve this? No, sir. Very simple. It was simple. What you had to do, you had to do componendo, dividendo, and after that, you will be getting the values in respect of tan. Okay, the values that you will be getting, it would be in the respect of tan theta. That means tangent of angle. Okay, so this was as a homework you have completed. Okay, now the next one, question number 10. Did you all get the answer? If an angle alpha is divided into two parts A and B such that A minus B is Yes, equals sir. to Option C, X. sir. Okay, option number C. Did everyone got the same answer? Please check option number C. Sine alpha by 3. Please check. Yes, sir. Will I have to solve this question? No, Please check whether we have to solve. I have to solve this question or not. Will I have to solve? I am asking from everybody. सभी से पूछ रहा हूँ, बोलिए. No, sir. I don't have to solve, right? सभी का आंसर आ गया है? Yes, sir. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. बताएं कैसे किया जाएगा. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x. मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या मैंने दिया था लास्ट क्लास में? डिड आई गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम? बताएं. no, sir. Sir, So I we can think do this its through answer is calculus also. 12. Answer you are getting as 12. Yes, sir. Sir, is it correct? Okay, no, this is not the right answer actually. Is there any other answer? Tell me. Is there any So other 7. answer? Answer 7. Okay, answer as 7. Sir, 10, sir, 10. चलिए, So 7, option 10, C. 7, 10. So there are lots of answers, I guess, right? So 10 as well. So I got 3 answers. So I have to solve this. Now see, what is the like basic method? 3 cos x plus 4 sin x. यदि ये दिख जाए, that means यदि आपको इस फॉर्मेट में यदि दिखता है a cos थीटा b sin थीटा, यदि इस फॉर्मेट में दिखता है, ध्यान से समझिएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है. मैक्सिमम वैल्यू शुड बी रूट ओवर प्लस में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड मिनिमम वैल्यू होता है माइनस में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो मैक्सिमम वैल्यू वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. Maximum value should be what? That means you are finding out the root. The value of a is 3, the value of b is 4, so 3 square plus 4 square, it will be how much? It will be how much? 5. 5. अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या किया गया है,
5 को ऐड किया गया, they have added +5, so what you will do, you will be adding +5 in both the sides, that means all the sides. So if all the sides, if you are adding +5, so how much the value it is coming? The maximum value would be 10. The maximum value would be 10. Is that clear? Yes, sir. Is that clear to everyone? Tell me. Yes, sir. Again I am explaining you the concept. What is the concept? If you are like if the question is visible to you in that method or in that way, that a cos theta plus b sin theta, okay, if it is in that format, the minimum and maximum value becomes the plus root over a square plus b square would be the maximum value, and the root over a square minus b square, that means negative of that value, would be minimum value. Is that clear? Please check. Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Do anyone has any doubt over here? Please check. Will I move to the next question? Tell me. Yes, sir. Move to the next. Okay. The next one is question number 12, as you all can see. If tan A minus tan B is X, cot B minus cot A is equals to Y. They have asked you cot A minus B. Okay, this is also, I guess, very easy only. Okay, not very easy, I get it, but it is like you can do. Please try to solve it out, giving you all 2 minutes. Please try to solve it out. So solve करने की जरूरत नहीं है. It is not needed, right, for you guys? Yes, sir. So moving to the next question. Did everyone got the same answer? Option number C. Okay, sir. Yes, sir. Did you all get the option number C as answer? Yes, sir. All these questions that I am solving you guys, for you guys, these questions are from your book itself. Okay, that Pathfinder book. Is that clear? So cos of A, cos A plus cos B is equals to M, and sin A plus sin B is equals to N. Where M and N are not equals to 0, they have asked you cos of A plus B. Okay. Tell me how to proceed or how to solve. मैंने यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? I have used that cos C plus cos D formula. That means I am converting the sum of the cos values to their product. ठीक है? ठीक. तो ये वैल्यू फिर आपका कितना आ जा रहा है? ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था, आई गेस. tan of थीटा बाई 2 यदि दिया हुआ है, तो cos थीटा निकालने के लिए आप क्या करें? उसका फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. फॉर्मूला मैंने सही लिखा है ना? प्लीज कंफर्म. Sir, can you please repeat? Yes, sir. Yes, sir. सही है. Cos theta, यदि tan of theta by 2 is given to you, okay, can you find cos theta? Yes, there was a formula. What was that? It was 1 plus tan square theta by 2 by 1 minus tan square theta by 2. ये Yes, फॉर्मूला sir. क्या था? सही ना मैंने सर, लिखा ভুল भाई? আছে স্যার. अच्छा, স্যার ভুল আছে। হ্যাঁ স্যার, কি ভুল 1 আছে? মাইনাসটা উপর হবে স্যার. अच्छा, 1 minus মাইনাস ऊपर 10 স্কয়ার होगा। a প্লাস b বাই 2. হ্যাঁ স্যার. अच्छा, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, कंफर्म कीजिएगा जरा कोई। हाँ सर, माइनस ऊपर प्लस नीचे. अच्छा, माइनस ऊपर प्लस नीचे ना सर. cos of थीटा, फॉर्मूला तो हमने ऊपर ही लिखा था, कंफर्म कर लिया था, हमारे दिमाग से ही फॉर्मूला निकल जा रहा है. बताइए, टैन के रेस्पेक्ट में हमने फॉर्मूला लिखवाया था ना आप लोगों को? टैन के रेस्पेक्ट में लिखवाया था फॉर्मूला आप सबको, या नहीं लिखवाया था? अच्छा, माइनस वाला हाँ सर, लिखिए. ओके ओके, माइनस का वैल्यू ऊपर रहेगा. एग्जैक्टली. चलिए ठीक, तो मैंने गलत लिखा, राइट. सो द माइनस तो सर ऑप्शन ए होगा. चलिए, ऑप्शन नंबर ए होगा.
यस ऑप्शन सर नंबर नहीं ए सर, आ ऑप्शन डी ही होगा। अरे कैसे, जब माइनस साइन चेंज हो जाएगा तो ऑप्शन डी कैसे होगा? सर ए होगा। ए ना हो जा रहा है, हमने तो ये वाला लिखा ही गलत, मैंने तो बोला, आप ही लोगों ने तो बोला सर भी। मैंने भी यही लिखा था फॉर्मूला पहले। अच्छा, फॉर्मूला आपने भी गलत लिख दिया था। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस एम होल स्क्वायर बाय 1 प्लस n बाय एम होल स्क्वायर। अब यहाँ से चेक कीजिए कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यही तो आ रहा है, यही वाला तो आ जा रहा है, ठीक ही तो है। यस सर। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, है ऑप्शन सर, नंबर তাহলে তো ए এই इज হবে। द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये तो रहा मतलब यस सर। बेसिक अप्रोच। मान लो फॉर्मूला भूल गए तो फिर गलत आंसर भी मार दे रहे, नहीं फॉर्मूला यदि भूल गए, जैसे मेरा जैसा प्राणी फॉर्मूला भूल गया, ठीक, तो क्या वो आंसर के पास पहुंच सकता है? तो हाँ, डेफिनेटली पहुंच सकता है, क्यों नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब देखिए हम बिना फॉर्मूला का बता रहे हैं, बिना फॉर्मूला का हम कैसे प्रोसीड करेंगे। इरेज करूं मैं इसे? यस सर। नोट डाउन कर लिए हैं? जी सर। चेक कीजिए, ये हो गया है ना? इरेज कर रहा हूँ मैं हाँ इसे, ठीक सर। है, ये वाला Yes, पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, यही मैं इरेज कर दे रहा हूँ, बस हमको ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए, शॉर्टकट है तो फिर काहे का स्पेस। স্যার 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 1 মিনিট স্যার, 1 মিনিট স্যার, ইরেজ করেন না স্যার। लो, এক अभी मिनट। इरेज कर दिए तो फिर बोलते हैं স্যার आगे আপনার ओके। না না স্যার, যেটা ইরেজ করেছেন ঠিক আছে, ওইটা অসুবিধা নেই। আপনি अच्छा স্যার মানে অঙ্কটার ঠিক আবার আরেকটা ফর্মুলাও স্যার ভুল লিখে ফেলেছেন আমার মনে হচ্ছে। अच्छा, স্যার कौन সাইন सा সি बोल? প্লাস সাইন ডি, স্যার ওই যে সাইন এ প্লাস সাইন বি, ওটা স্যার 2 সাইন এ প্লাস বি বাই 2 সাইন এ মাইনাস বি বাই না স্যার, ওটা नो আপনি नो এটা কস লিখেছেন যেটা, ना, ওইটা cos ही আছে। কস হবে না? হুম, আচ্ছা স্যার, ওইটা cos আছে। साइन कॉस। না স্যার তাহলে ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার, আমি আসলে অন্য একটা ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার। ओके। अरे एक बार गलती कर হ্যাঁ স্যার, सकता है হ্যাঁ স্যার। इंसान, हर बार गलती थोड़ी ही करेगा। না না স্যার, তা নয়, আমার নিজেরই ভুল হয়েছে আসলে, ঠিক আছে, আমি আমি ওই জন্য একবার মনে ভুল হলো তাই করতে বললাম। পারি, আমি মানি আমি একবার ভুল করতে পারি, সব সময় কি ভুল করতে পারবো? হ্যাঁ, না না স্যার, সেটা তাই হয়। হচ্ছে কথা। सो सपोज मैं मान लेता हूँ कि ए और बी का वैल्यू जो है कोई भी एक एंगल के बराबर है, मान लेते हैं 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है, ए और बी दोनों ही 30 डिग्री है, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos 30 डिग्री कितना होता है? सर √3/2। चलिए √3/2 प्लस √3/2 कितना हो जाएगा? सिर्फ √3। एम का वैल्यू, यस सर। एन का वैल्यू कितना हो जा रहा है? एन का वैल्यू कितना हो जा रहा है? कितना हो रहा है बोलो? साइन 30 प्लस कॉस साइन 30 प्लस साइन 30 कितना हो जा रहा है? हाफ प्लस हाफ यानी 1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 30 प्लस cos 30 यानी 60 डिग्री लिख सकते हैं, बताओ। हाँ सर। तो Yes, cos sir. 60 डिग्री होता कितना है? हाफ Sir, cos 60 डिग्री कितना होता है? हाफ। अरे इतना हाफ, कंफ्यूजन क्यों है भाई? हाफ है तो बोलो हाफ, डर हाँ डर सर, के बोल बोल तो रहे रहे हैं हाफ सर। है कि नहीं है, कंफ्यूजन। चलिए, अब यहाँ पे हाफ आ गया। अब देखिए हमारा एम और एन का वैल्यू पुट करने के बाद कहाँ पे हाफ आ जा रहा है, तो हम यहाँ पे पहले पुट कर रहे हैं। √3 का स्क्वायर यानी 3 - 1/3 + 1 कितना हो जा रहा है? 2/4 यानी हाफ। पहला में ही आ गया तो आंसर यही है। अब बाकी चेक करने का यदि फिर भी तीव्र इच्छा हो रही है तो कर लो, कौन मना किया है? समझे कि नहीं? सर लेकिन हमने a = b = 30 डिग्री ही क्यों लिया? जस्ट ऐसे ही, मतलब ठीक हम है। 90 डिग्री भी तो ले सकते 90 डिग्री लेंगे तब तो फिर 0 आ जाएगा एक केस में, तो 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं। 60 डिग्री आप Sir, ले सकते हो। sir, अच्छा 60 डिग्री ले 45, सकते हैं, 45 ले अच्छा सकते हैं। 45 यदि लेंगे, ध्यान से समझिए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर हो सर जाएगा ऊपर 90 0। डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 सर, डिग्री हो 90 जाएगा तो हो डिग्री जाएगा ऐसे। दिक्कत। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों लिया? 60 लेते हो, 30 और 60। सपोज 60 30 हाँ और सर। 60 लेते हो तो भी तो 90 आ रहा है, तो फिर 0 दे देगा, तो इसलिए तो 30 सर ये 30 एज्यूम किया। हाँ बोलिए, यहाँ तो 90 आ जाएगा ना। cos 90 कितना होता है? cos सर 90 एंगल डिग्री। पता होना चाहिए स्पेसिफिक। एंगल जो है आप यदि 60 लेते हो, सिंपल सी बात है, तो 60 + 60 लेते हो तो क्वाड्रेंट तो चेंज हो जा रहा है ना, 120 हो जा रहा है। हाँ सर।
क्वाड्रेंट तो चेंज हो जा रहा है, तो क्या वो हाँ। मतलब लाइक एक्सेप्टेबल होगा? एक्सेप्टेबल होगा, फिर क्वाड्रेंट आपको चेंज करना पड़ेगा, आंसर शायद आ सकता है, नो डाउट। ठीक है, तो आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर ए है, ये है शॉर्टकट तरीका। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके पाथ फाइंडर वाले जो बुक हैं, जो आप लोग फॉलो करते हैं, वहीं का है। चलिए इसे बताएं। कहता है a प्लस बी जो है 90 डिग्री है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस बी। अच्छा, कॉस से कॉस बी है, ये भी शायद किए हो क्लासेस वगैरह में, 11-12 में, इजी है। Please solve this question. A plus B is 90 degree. Find the minimum value and maximum value. A. Option number A. ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या आपका? सर कर रहे हैं सर। अच्छा, चलिए कीजिए। That question is also correct, but what we are taking, converting cos A cos B into, like B will be considered as sorry. So B would be considered as what? 90 minus theta or 90 minus A. So it will become sin A. Now 2 sin A cos A will give you sin 2A, and the theta, that means sin theta range is -1 to +1, and from there you will get the answer. Chalo. So the answer is minus half plus half. It was easy only. Have you all copied? यस सर। Moving to the next question then. Okay, for this question it is very time taking, and these question generally comes in JEE. It is not your past year questions. If you still want me to do, there is no shortcut for this question. If this type of, okay, this will be as homework then. Try at home. If you are not able to solve it out, I'm going to solve this question for you guys. Okay, this will be as homework. Copy this question. Done. Puppet. Puppet this question. That's what I'm asking. Tell me. हाँ सर स्क्रीनशॉट नहीं Yes, sir. Okay. Now tell me how to solve this question. Alpha and beta are acute angles. Cos 2 alpha is given to you 3 cos 2 beta minus 1 by 3 minus cos 2 beta. Okay. They have asked you find the value of tan alpha cot beta. What is the value? Giving you all 2 minutes. Solve it out. Be fast. What we have done, applying componendo and dividendo. Okay, so if you are applying componendo dividendo, it will be 1 plus cos 2 alpha by 1 minus cos 2 alpha, right? And for this part, if I say like 3 minus cos 2 alpha plus 3 cos 2 alpha minus 1, so how much we are getting? Sir, it is beta. Okay, cos 2 beta. Okay, so how much we are getting? If you add these two, you will be getting 2 plus 2. सर 2 plus 2 cos 2 beta. Sorry, okay, 2 beta. And हाँ in the सर 2 denominator, beta. how much you are getting? 3 सर minus of 3 minus cos 2 beta. plus 4 हाँ सर cos, sorry, minus cos 2 beta. 4, no? Minus 4, right? Yes sir minus 4 Minus 4 cos 2 beta. Okay. So we can take common over here. Okay, this part will be considered as which formula? Tell me.
1 plus cos 2 alpha by 1 minus cos 2 alpha. Which formula is that? Sir, 2 cos square alpha by 2 sin square alpha. Okay. 2 cos square alpha by 2 sin square alpha. So ultimately, can we say Yes, sir. that it is cot b alpha? Can we say that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Sir, did I not am writing. understand, sir. You haven't understood. Which part you haven't understood? 1 plus cos 2 alpha is how much? 1 plus cos 2 2 alpha sin is square which alpha form? by 2. Okay, 2 sin square alpha, right? That means 2 alpha by 2, that means अच्छा alpha. अच्छा हाँ alpha हाँ Have you understood? 2 Yes, sir. sin square alpha or cos square alpha? What is it? पहले Sorry, sin sir. लिखते हैं या cos लिखते हैं? 1 plus cos 2 alpha is equals to what? Equivalent to what? 2 sin square alpha or 2 cos square alpha? What is it? Sir, Cos. sir, 2 cos square alpha. पक्का? Yes, sir, पक्का. चलिए, तो यहाँ पे फिलहाल क्या हो जा रहा है आपका? 2 sin स्क्वायर अल्फा नहीं बल्कि 2 cos स्क्वायर अल्फा. तो cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा को यदि आप डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? cot हो जाएगा ना? Yes, sir. That would be cot square alpha. Can we write that? Tell me. Yes, yes, Will sir. it be written as cot square alpha? This Yes, sir. This one is considered as 2 cos square alpha. This one is considered as 2 sin square alpha. So can I write cot square alpha? बताइए. Yes, sir. समझे इस बात को? यहाँ हाँ, पे भी sir. आप क्या कर सकते हो? 2 कॉमन, it will be 1 plus cos 2 alpha, cos 2 beta, and 4 common 1 minus cos 2 beta. So can we write over here for this part half, and what Sir, can be sin written? square has, sir. It would be the same. So like it can we Half write tan square beta. Half cot tan- square beta. cot square beta? We can write it down. Yes, sir. Can we write cot square beta? Yes, right? sir. We can write. Yes, sir. So it will be considered. Now see what they have asked you. They have asked you tan alpha and cot beta. So you have to convert cot alpha as tan, and then you have to keep this one as cot beta only. Sir, tan alpha cot beta. चलिए, तो tan alpha cot beta क्या हो जा रहा है? What we are going to do? Sir, 1 2. by अल्टीमेटली मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैं स्टेप गायब कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका? This side it will be 2 and this side it would be tan square alpha cot square beta, and what you have to do, you have to take the square root of this because they have asked you tan alpha cot beta, so it would be root 2. Is that clear? Yes, sir. फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है? 1 plus cos 2 beta और मतलब 1 plus cos 2 alpha by 1 minus cos 2 alpha का फॉर्मूला याद रखना है. You have to remember that formula only. Is that clear to everyone? So the answer Yes, sir. of Yes, sir. tan alpha cot beta is root 2. Tan alpha cot beta is root 2. Please copy this solution. Moving to the next question. Done, sir. Done. Okay. Next question क्या है? Yeah. Sin x plus sin square x equals to 1. Then find the value of this thing. चलिए बताइए. Sin x plus. Now see, the values are in cos, so there should not be any sine thing. Okay, sine of angle should not be there according to the question. So what you have to do, you have to convert all the values in sine only. Now solve it. Check whether you are getting the values or not. Even আছে. ঠিক আছে, পাওয়ার গুলো ইভেন আছে যেহেতু 1ই হবে। হ্যাঁ স্যার। এক্স্যাক্টলি, One ই পাওয়ারগুলো হবে। ইভেন আসে তাই জন্য 1 ই হবে. So sin x you are getting the value as cos square x, and what you have to do, you have to square both side again, so it will be cos square cos to the power 4x,
and it will become 4x is equal to sin square x. 1 minus cos square x. Yeah, sin square x, that is nothing but 1 minus cos square x. And after that, what we will see that cos to the power 4x plus cos square x. And what you do, you will be squaring both side again. And after squaring both side, you will be getting this thing. Cos to the power 8x, 2 cos to the power 6x, and cos to the power 4x, and that would be 1 square. 1 square will be nothing but it is 1 only. So the answer is option number C. Is that clear? Answer is option number C. Yes, sir. So, is that clear to everyone? Moving to the next question. Copied? Copied this question? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. So, moving to the next one. चलिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. Question number 18, not this one. I'm talking about this one. Okay. Tell me how to solve. X is equals to y cos 2 pi by 3 equals to z cos 4 pi by 3. They have asked you the value of xy plus yz plus zx. স্যার কে ধরে নিয়ে করতে হবে না অঙ্কটা? হ্যাঁ, গোটাটা সমান কে ধরে নিতে হবে? exactly. Consider that হ্যাঁ স্যার. portion as k. Chalo. Check the quadrant first. 2 pi by 3 can we write like pi minus pi by 3, can it be written? 2 pi by 3 কে কি আমরা লিখতে পারবো pi minus pi by 3? Yes, sir. যদি Yes, pi sir. minus Minus pi half. by 3 হয় তাহলে কোন কোয়াড্রেন্ট হচ্ছে? সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট তো? Second quadrant. সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট স্যার. quadrant একদম হচ্ছে, স্যার. that means cos is not having positive value. पहली बात, ठीक है? Minus sir. half. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos of pi by 3 কত হয়ে যাচ্ছে বলো? স্যার Minus হাফ আর সেকেন্ড Minus কোয়াড্রেন্টে half. থাকার জন্য Second মাইনাস হাফ. quadrant, তাই জন্য minus sir. half. So Minus x is half. equals to minus y by 2 আমরা লিখতে পারি, তাই তো? আমরা লিখতে পারি x is Yes, equals sir. to Yes, sir. minus y by 2. তাহলে এখানে দেখবেন এইটা কত চলে আসছে? pi plus ওটাও pi স্যার. by 3 কি লিখতে পারি আমরা? পাই বাই. হ্যাঁ তো স্যার. এটা কোন কোয়াড্রেন্ট? এইটা স্যার থার্ড কোয়াড্রেন্ট. হ্যাঁ, cosটা থার্ড এখানে হচ্ছে minus half. মাইনাস হবে, ঠিক আছে? তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে কত? z by 2 minus z by 2. यहाँ तक किनको হ্যাঁ স্যার এবার কে ধরে নিতে হবে স্যার? হ্যাঁ, এখানে কে ধরে নিন, তারপর কি হয়ে যাচ্ছে? x এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে k. স্যার ভ্যালু কটা বার করব, পুট করব. Yes, sir. এক্স্যাক্টলি, আর কিছু y minus 2k, ঠিক z আছে, minus 2k. ঠিক আছে, আর Yes, কিছু sir. করতে হবে না. You have to just put the value xy plus yz plus zx. हमेशा याद रखिए ऐसा वो कोई वैल्यू देगा ही नहीं कि वो 1 या 2 आए. क्यों? क्योंकि k का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा ही नहीं, तो हमेशा 0 ही मिलेगा. ये चीज याद रखें. तो k इंटू यहाँ पे कितना हो जा रहा है? y का वैल्यू -2k, ठीक है? यहाँ पे कितना हो जा रहा है? यहाँ पे कितना हो जा रहा है? -2k इंटू -2k यानी -4k स्क्वायर, ठीक है? হ্যাঁ और यहाँ স্কয়ার. पे कितना हो जा रहा हो है? गया सर. यहाँ पे हो गया -2k इंटू k, -2k স্কয়ার. ठीक? तो -2k स्क्वायर अच्छा माइनस, प्लस 4k स्क्वायर, -4k स्क्वायर सर. अच्छा बीच में प्लस का ही साइन था ना. हाँ, तो ये माइनस इंटू माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना सर. ये वाला प्लस हो जा रहा है आपका, और ये दोनों माइनस हो जा रहा है. तो -4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर सर 0. ठीक है, तब 0 आ जाएगा. ठीक, तो ये 2 स्टेप का कहानी था, कुछ था नहीं इसमें. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बोले? नो सर. इस क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी कुछ था नहीं. क्वाड्रेंट निकाला, क्वाड्रेंट निकालने के बाद अज्यूम किया वैल्यू, एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू एज 0. We are getting the value as 0. Now tell me this question how to solve. They have given you like sec of theta minus alpha, sec of theta and sec of theta plus alpha are in AP. They have told you that the cos alpha is not equals to 1. Then find the value of sin square theta plus cos alpha. चलिए बताइए कैसे करे किया जाएगा. Giving you all 2 minutes. Solve it out. Okay, this formula Yes, was sir. already given in the introduction class. So this is the way to
solve this question. Take the AP portion, then solve it like convert it into cos theta. The sec is considered as cos, and after that it will be like apply this formula, and after applying this formula 2 gets cancelled, cos is square theta cos alpha, it becomes on the right hand side, and for the left hand side we can write down this formula as this one. So directly I have written cos square theta and sin square alpha, and after that solving those values we are getting as 0. Okay, I hope everybody has understood this portion, right? सभी को Yes, समझ sir. में आ गया है? So moving to the next question, will I like, do you have you guys all copied? Have you all Yes, sir. copied, or Yes, sir. I am going to wait? Yes, sir. Okay. Moving to the next question. The next question says that, yeah, this one. Tell me how to solve. Question number 7. A plus B plus C is equal to 180 degree. They have asked you sine of 2A minus sine of 2B minus sine of 2C is equal to, ये भी NDA 2018 में आया हुआ. चलिए, इससे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 7. Tell me, I am giving you all 1 minute. So what is the value of A plus B can be written? It can be written as 180 minus Pi C. minus C. ठीक, 180 minus C it can be written. Can I consider sin C minus sin D? What is the formula for sin C minus sin D? Tell me. Now the formula part I am not going to do. You have to tell me the formula. 2 Tell me. sin C minus D by 2 and cos C plus D by 2. So 2 cos. First we are writing cos or sin. Sin Okay. So 2 sin A plus B by 2. A minus B by 2. Okay. So A স্যার minus কিসের C by ফর্মুলা বললেন আরে বলুন sin C minus sin D. sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 Exactly. 2 cos C plus D by 2. That means 2A plus 2B by 2, which will be written as A plus B by 2. That means 2 times of A plus B by 2. It will give you what? Sin cos of A plus B. And for the other part, it can be written as sin of A minus B. Sin of A minus B. That's it. Right? And minus sin 2C. So sin 2C I am writing as it is. For sin 2C I am writing as it is for now. Or it can be also written as 2 sin C cos C. Okay. Or you can break it into 2 sin C cos C. 2 sin C cos C. I am writing in this. Now tell me, can we write cos of A plus B as cos of 180 minus C? बताइए, can we write that? Have you understood what I am saying? Yes, sir. I was saying Yes, like sir. cos of A plus B can be written as cos of 180 minus C. Can we write minus of 2 times of cos C? Minus of 2 times of cos C, and then sin of A minus B will remain as it is, minus 2 sin C cos C will remain as it is. Now see, at the end you are getting cos C. At the end you are getting cos C. So definitely these two won't be the answer at all. Option A and option C won't be the answer at all. पहली बात तो ये दिमाग में डाल लेना है, right? That the answer of option A and option C can't be taken or can't be assumed. So what we can say, from here you can like take 2 common and cos C common, right? सर मेरा आंसर डी रहा है सर. अच्छा डी आ रहा है, चलिए तो बी और डी में ही कुछ आंसर होगा, आंसर डी आ रहा है, चलिए अच्छी बात है. तो cos C is taken as common, sin of A minus B minus sin C. Now tell me which formula will be applied again? 2 cos C sin A minus sin B. sin A minus sin B कितना आ रहा है, कितना आ जा रहा है बताइए.
यहाँ पे आप क्या ऐसे लिख सकते हो, a minus b and c is taken as like what 180 minus of a plus b. A- तो ये तो साइन का ही घर है, 180 माइनस ऑफ a प्लस बी, ये तो साइन का ही घर है ना, तो कैन वी राइट लाइक साइन ऑफ a प्लस बी। पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है ये यस बात? सर। मैंने क्या बोला, हाँ साइन सर। सी के जगह पे हम लोग तो लिख सकते हैं ना 180 माइनस ऑफ a प्लस बी ब्रैकेट में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाबा, पता चला कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, मैं ये बोलना चाह रहा था। ठीक है, तो ये तो साइन का ही घर है ना 180 वाला, 180 वाला तो साइन का ही घर है, तो साइन तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा। जब पॉजिटिव ही होगा तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, साइन ऑफ a प्लस बी लिख देंगे डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे मैंने इसीलिए डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। अब यहाँ पे No, कौन सा sir. फॉर्मूला लगेगा बताइएगा जरा। कॉस सी तो वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या है, साइन ए माइनस साइन, मतलब साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर से, 2 2 cos c Sin plus d B. by 2 sin c minus d by 2. चलिए, तो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी पहले है और a प्लस बी बाद में है, तो क्या माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, क्या करेंगे? तो माइनस का साइन तो हट जाएगा, प्लस में आएगा। प्लस ही में आएगा। तो कॉस ऑफ क्या लिखूंगा मैं, प्लस ही में आएगा सर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली बताइए फिर। एक बार लिखेंगे कॉस बी, एक बार लिखेंगे साइन ए, राइट। अच्छा, कॉस ए पहले लिखेंगे ना साइन ए पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सर cos a. चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी माइनस ऑफ a प्लस बी, तो यहाँ पे आ जा रहा है 2 cos b एंड साइन a। यही आ रहा है, चेक करो सॉल्व करने के बाद, ये इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है बताएं। -4 cos c cos b sin। हाँ सर, ऑप्शन बी होगा सर। तो आ जा रहा है ऑप्शन नंबर बी ना डी? बी फॉर बॉम्बे। बी आ रहा है, साइन भी तो है ही नहीं आपका, तो कॉस भी है ना, तो डी ही ना आया। हाँ डी, हाँ डी। सर टी से डी। डी आ रहा है ना, चेक करो। हाँ सर यहाँ डी आ पे रहा दो है। बार फॉर्मूला अप्लाई करना था, साइन सी प्लस साइन डी वाला या साइन सी माइनस साइन डी वाला। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत बताएं? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी No, समझने sir. में, बोलिए। नो सर। कोई डाउट नहीं है, क्लियर No, है? sir. ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक हाँ। है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक नहीं, ठीक ही है। चलिए सॉल्व कीजिए। दे हैव टोल्ड यू दैट थीटा विल बी टेकन एज 1200 डिग्री, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इनवर्स इज पॉजिटिव, वो आपको चेक करना है, ठीक। एंड the second statement is saying the same and they have asked you whether it is negative or not. Which of the above sentence is correct or are correct? यदि दोनों सही है तो दोनों बताइए, यदि कोई एक ही है तो एक ही बताइए, दो है तो दो ही, दोनों बताइए। चलिए सॉल्व की जरूरत है या कर लोगे? 1200 डिग्री जो है वो क्या है, 180 के कितने टाइम्स है? सर 6 times। 6 टाइम्स। अच्छा, 7 टाइम्स करें तो कितना आ जाएगा? 12 है, 60 आ जा रहा है, राइट। 12 60 और माइनस 60 कर दें, ऐसा कुछ किया जा सकता है? किया जा सकता है, बताओ। अब ये 7 बार जब गया होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक। तो जाहिर सी बात है, इसको डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर से आप
सेक थीटा माइनस टैन थीटा से आप यदि मल्टीप्लाई कर दें, how much your value you are getting? Tell me. We'll be getting sec theta tan theta. अब हमारा क्वेश्चन है, ये वैल्यू जो है वो कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कहाँ पे आ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में रह जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में डेफिनेटली सेक का भी माइनस में होगा और टैन का भी माइनस में ही होगा, है ना। तो सेक ऑफ 60 डिग्री कितना हो जा रहा है बताएं। सेक 60 डिग्री कितना, 2 तो हाँ सर 2 होगा ना। माइनस का साइन मैं पहले ले ले रहा हूँ, क्यों लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, उस क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं, उस क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं। तो 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस टैन 60 डिग्री कितना √3। आप जो भी वैल्यू आप पुट करो मतलब √3 का जो भी वैल्यू आएगा तो अल्टीमेटली तो नेगेटिव में आएगा आंसर। उसने क्या कहा पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में कहा तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया गलत। दूसरे स्टेटमेंट के पास आइए, इसके पास देखिएगा जरा, यहाँ क्या कह रहा है, इसको कन्वर्ट करोगे ना तो आ जाएगा कोसेक थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही आएगा क्या बताइएगा जरा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या यही आएगा, बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है हमारी, बोले। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये इस चीज को। है सर एकदम अच्छा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे इन्वर्स नहीं है ना, सॉरी तो फिर तो माइनस का माइनस ही रहेगा, चलो ठीक है, ये फिर आपका माइनस का माइनस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अब ध्यान से समझिए, ये तो जब ऐसे ही छूट गया तो इसका क्वाड्रेंट चेक करने की बात करेंगे, तो यहाँ पे तो हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री कितना होता है 2/√3, बोलिएगा जरा। है सर। और यहाँ पे कॉट तो माइनस में देगा, कॉट जो है वो वैल्यू क्या देगा माइनस में देगा, तो माइनस ऑफ कॉट माइनस सर कितना होता है 1/√3, सो 1/√3। तो अल्टीमेटली तो ये तो पॉजिटिव में ना आ रहा है, आंसर क्या चीज में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, माइनस ऑफ माइनस हाँ। प्लस हो जा रहा है। आंसर उसने दिया नेगेटिव में, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन कौन सा होगा, क्लियर हुआ, सो ऑप्शन डी। क्लियर है आप सभी को बताएं। यहाँ तक क्या sir. कोई डाउट है सर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कोई डाउट है प्लीज बोलिए, यदि डाउट है तो आगे करवाया जाए, एक बार और समझा देंगे। No, sir. What do you have to check? You have to check the quadrant, ठीक है। After checking the quadrant, just put the values and check whether you are getting in positive or negative. They don't want the value from you guys. They want only to check whether the value should be positive or the value is negative. That's what you are checking about. That's it. Is that clear? Moving to the next question. है सर चलो। So the next question says, just hold on. Have you guys noted down the solution? Solution note down करना हो गया ना? Yes sir. Yes sir. Okay. Moving to the next question. This question will be as homework. चलो। अच्छा, sin 66 is greater than cos 66. ये स्टेटमेंट पूछ रहा है and cos 26 is smaller than 26. बताओ इसका क्या कॉन्सेप्ट है? Tell me what are the concept for solving this kind of question. आज जो भी है, आज ट्रिग्नोमेट्री का जो लाइक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ऑल एंटायर सिलेबस आपका लगभग खत्म, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन से आपको डील करना है, ठीक है। लगभग हमने बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखा। नेक्स्ट डे विच चैप्टर डू यू वांट मी टू स्टार्ट? कैलकुलस? Yes, sir. Calculus. अच्छा ठीक है, तो कैलकुलस शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलस भी बड़ा लंबा खींचेगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एवरीथिंग विल बी देयर। चलिए ये क्वेश्चन बताइए,
Sir, only first one is correct. ओके, ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट। ओके, चलिए। सभी का यही कहना है। उसने कहा cos 26 इज स्मॉलर। देखिए ध्यान से समझिएगा, cos 45 के sin 45 के बाद sin 45, अच्छा sin और cos का ग्राफ आप सबको पता है कैसा होता है? हाँ सर, हाँ सर बताइए। पता है। पता है। तो साइन जो है 45 के बाद जो है हमेशा बड़ा वैल्यू देगा कॉस से, ठीक है। तो 45 के बाद जब बड़ा वैल्यू देगा तो जाहिर सी बात है 45 के बाद तो 66 है, तो ये तो बड़ा ही है, ठीक। साइन 45 से बड़ा है ना 66, तो 66 जो है ये वैल्यू जो है इससे बड़ा होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट साइन ऑफ 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कॉस से बड़ा होता है। कॉस का वैल्यूज 45 के बाद से जितने वैल्यूज होंगे वो छोटे हो जाएंगे साइन 45 के वैल्यूज से, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है वो आपका 45 का रेंज है। ये क्या है? 45 डिग्री। ये है कॉस का कर्व, ये वाला है कॉस का कर्व, ठीक। और ये वाला है साइन का कर्व, ठीक है। ये है आपका साइन का कर्व। अब ध्यान से देखिए, cos 26 यहाँ पे है और sin 26 यहाँ पे है। तो sin 26 यदि यहाँ पे है तो cos तो बड़ा ना हुआ sin से, तो यहाँ पे क्या लिखा उसने? ये स्मॉलर उसने लिख दिया, तो ये गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिर्फ स्टेटमेंट। चलो इसे जरा नोट डाउन करो। फिर से क्या समझाने की जरूरत है या समझ में आ गई आप सबको कि क्या मैं कहना चाहता था? ऑप्शन फिर कौन सा कह रहा है? ऑप्शन ऑप्शन सी। नंबर कह रहा है सी, ठीक है। क्या किया हमने लिखा ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का, लेकिन प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ डी हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, और एंगल ऑफ सी प्लस एंगल ऑफ एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ सी हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। फिर क्वाड्रेंट तो आपको पता ही है, कॉस ऑफ ए वैसे ही छोड़ दिया, कॉस ऑफ बी निकालने के लिए क्या कीजिएगा 180 माइनस डी यानी माइनस कॉस डी, और कॉस सी को भी निकाल लीजिए 180 माइनस कॉस, मतलब 180 माइनस है यानी माइनस कॉस से, फिर ये कट के तो जीरो आ जाएगा। तो पहला वाला कंडीशन सही है, और दूसरा वाला भी तोड़ा इसको, पाई प्लस है यानी माइनस कॉस है, पाई माइनस भी फिर भी उसी उसका क्वाड्रेंट नहीं है तो माइनस में होगा आंसर, एंड पाई माइनस सी तो माइनस कॉस सी, और उसके बाद उसी तरह यहाँ पे भी बी का वैल्यू सी का वैल्यू को पुट कर दीजिए, डी का वैल्यू को चेंज कर दीजिए, बस कट जाएगा, आएगा जीरो। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? हमारा सही है। दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताएं? यहाँ तक कोई परेशानी? अच्छा ये No, क्वेश्चन sir. दे दिया है। अच्छा हमने इसका कुछ फॉर्मूला लिखवाया था आई गेस, इसका कुछ फॉर्मूलाज हमने लास्ट क्लास में बोला था कि आप नोट डाउन कर लें। देखिए मैं लाइक फॉर्मूलाज के पास ले जा रहा हूँ आप सबको, हाँ? काफी क्वेश्चंस करवा दिए हैं जी। ये वाला मैंने बोला था जनरल सॉल्यूशन बाद में करेंगे, एक क्वेश्चन आ गया है। अच्छा इसे पहले चेक कर लो तो जरा, इसे पहले चेक करो। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा यदि है तो थीटा का वैल्यू कितना है? एन पाई प्लस -1 होल टू द पावर एन अल्फा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -π/2 से π/2 तक। उसी तरह cos थीटा का इक्वल टू cos अल्फा के बराबर है, तो थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको दोनों स्टेटमेंट चेक करने हैं और आंसर बताना है। तो ये जो है मैं डायरेक्ट फिर अब क्वेश्चन के पास जा रहा हूँ। ये आपके पास है ना? ये क्या क्वेश्चन आपके पास है? दैट मींस सॉरी, ये स्लाइड आपके पास है फॉर्मूला का? बताओ। हाँ सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए तो इसी का फॉर्मूला का बेसिस पे वो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या था जरा देखिएगा। यही था। चलिए तो यहाँ क्या कह रहा है
एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो एन पाई प्लस माइनस अल्फा तो नहीं होगा, है ना। हमने क्या कौन सा फॉर्मूला देखा था, बताओ। एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा क्या, बताइएगा जरा। कौन सा स्टेटमेंट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, बताओ। थीटा का वैल्यू एन पाई, अच्छा क्या क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर cos। सर अच्छा हाँ, तो ये तो होगा ही। क्या करें, हम दोनों इक्वेशन को कर दें डिवाइड, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ बोलिए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर ना सर अल्फा। ठीक है जी, सुना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बच जा रहा है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इक्वल्स स्क्वायर टू tan अल्फा। स्क्वायर अल्फा। हाँ, तो थीटा का वैल्यू तो यही आ रहा है ना, हाँ थीटा सर का यही वैल्यू है। ये आ रहा है, तो ये सही है, ये सही है। दूसरा वाला चेक कीजिए, दूसरा वाला आप चेक करो, साइन थीटा का वैल्यू साइन अल्फा के बराबर एंड कॉस थीटा का वैल्यू कॉस अल्फा के बराबर साइमल्टेनियसली इज गिवन थीटा एज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। चलिए इसे बताएं, ये कितना आएगा, ये स्टेटमेंट ठीक क्या तो है। सही है, ये स्टेटमेंट क्या सही है, बताओ। हाँ सर। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा। आप क्या करो, आप क्या इसका वैल्यू को tan थीटा, अच्छा साइन थीटा वाला जो वैल्यू था ना, वो थीटा इक्वल्स टू क्या था, एन ये पाई। 2n पाई दिया हुआ देख लो, तो 2n पाई हो हाँ सकता सर। है क्या, सर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा जब होता है तब होता है तो 2n यहाँ पाई तो प्लस 2n माइनस पाई तो अल्फा। होगा नहीं, यहाँ तो cos थीटा होता है तब। लेकिन यदि हम हाँ tan को पकड़े, साइन थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा बाय cos अल्फा, cos। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या था आपका, n पाई प्लस माइनस अल्फा ना प्लस था, यहाँ माइनस क्या अल्फा। दिया हुआ है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, ठीक। तो ओनली थीटा इक्वल्स ऑप्शन टू, ए होगा। तो ऑप्शन ये वाला तो गलत हो गया, तो कौन सा है आंसर, ऑप्शन ए हो। ठीक है, क्लियर है। ये भी था नहीं, वो जस्ट मैंने बोला ना आपको, दो फार्मूला जो पीछे जो करवाया गया है बस वही फार्मूला। चलिए इसे जरा नोट डाउन करें, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिएगा। नो सर, नो डाउट। नो डाउट। चलिए यहाँ पे हमने नो क्या सर। किया, सिर्फ टाइम को कन्वर्ट करके, टाइम में कन्वर्ट करके बस उसके वैल्यूज को पुट कर दिया, और कुछ किया ही नहीं, ठीक है, और कुछ किया ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये हो गया ना, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ना आप सबका नोट डाउन करना, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा ये देखें क्या कहता है, कहता है कि एक्स वाई एंड जेड आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, जेड का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, क्योंकि कोसाइन 135 प्लस कॉस 135 उसका वैल्यू निकाल लेना है, और बता देना है कितना आ रहा है, बताइएगा जरा। बोलें, इसको तो लिख ही सकते हो आप, पाई माइनस 45, राइट, पाई माइनस 45, ठीक है। तो बस पाई माइनस 45 यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन 45, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है कॉस माइनस ऑफ कॉस 45, क्या आएगा आंसर, 0 आ रहा है, चेक करो। हाँ सर ये ठीक है। 1/√2 माइनस 1/√2 0 ही आएगा। इसका बताइए एक्स और वाई का वैल्यू कैसे करें, 24 में दिक्कत होगी, चलो बताओ 24 वाला कैसे करें। z का वैल्यू यदि 135 है तो x प्लस वाई का तो वैल्यू निकाल सकते हो आप, कितना हो जाएगा, यस सर, 45 45। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan y। सर 24 का 2 हो गए। 24 का 2 आ रहा है, सभी का आ रहा है, है सर, ऑप्शन बी। सभी का आ रहा है, चेक कीजिए।
यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक ही कर दे रहे हैं। tan x प्लस tan y प्लस कितना कितना हो जा रहा है, tan x tan y, यही ना, यही हो जा रहा है, चेक करो। हम किसी एक को x को यदि हम 0 मान ले और y को 45 डिग्री मान ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है बताओ? x को 0 मान लिया, y को 45 मान सकते हैं क्या, बताइएगा जरा। हाँ सर। मान सकते हैं तो बस फिर कितना आ रहा है, 2 आ जा रहा है आंसर। क्लियर हुआ? जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कोई परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं? सच में इतना अच्छा नहीं पढ़ा सर। दे रहे हैं क्या? क्या हमें हाँ सर। धोखा में रखने की साजिश रच रहे हैं आप सब? हैं? चलिए, समझ में आ गया ना आप सबको? हाँ सर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या कहता है। कहता है कि cos अल्फा cos बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन? 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बड़ा पेचीदा सवाल पूछा, चलो बताओ। बताइए कैसे प्रोसीड करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये पाथफाइंडर का क्वेश्चन है, ठीक है आपका। ये पाथफाइंडर का बुक वाला जो है, बुक का क्वेश्चन है आपका। क्या कहता है? कहता है कि 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू, अब देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा यदि क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा यदि ये रह जाए रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस कॉस अल्फा इंटू एक्स माइनस कॉस बीटा, लिख सकते हो? बताओ। अल्फा और बीटा यदि हमारा क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तब की बात, ठीक है? रूट ऑफ द इक्वेशन है तब की बात, ठीक है? लेकिन इक्वेशन में थोड़ा सा इम्प्रोवाइज क्या करेंगे, इक्वेशन में थोड़ा सा इम्प्रोवाइज क्या करेंगे कि हम एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है? 2x/8 माइनस 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है? तो मैं इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैसे ही लिख दे रहा हूँ। यहाँ क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो 4 बच जा रहा है, यही तो 4 सॉरी 4, और यहाँ पे कितना बच जा रहा है, 1/8, यही लिखेंगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या नहीं किया सर। हमने, इस इक्वेशन को जो है एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रख दिया, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर में कोई अलग कोएफिशिएंट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? अच्छा, यदि हम x का वैल्यू 1 एज्यूम कर लें तो कोई दिक्कत है? यदि x का वैल्यू 1 एज्यूम करते हो तो क्या हो जा रहा है, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/8 इक्वल्स टू, यहाँ कितना हो जा रहा है, 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। चलो ऐसे लिख सकते हैं, बताइएगा जरा। फिर से एक बार बताएंगे, क्या बोला जी, आपने, सुना ही नहीं दिया ठीक से। अच्छा मैंने बोला कि x का वैल्यू को यदि आप 1 एज्यूम कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/8 इक्वल टू, एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा। क्या लिख सकते हैं, बताएं? हाँ सर। हाँ सर। लिख हाँ सकते हैं सर। तो? अब इसे बैठ के सॉल्व कर लो। यहाँ हो जा रहा है 2/8, यहाँ हो जा रहा है 1/8 यानी 3/8, यानी हो जा रहा है 5/8, यही हो रहा है, चेक करो। यहाँ क्या हो जा रहा है, 1 माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू क्या था, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये क्या था, 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, यही तो, ये लिख सकते हैं, बताइएगा जरा। अच्छा सॉरी, दोनों ही जो है आपका माइनस में ही है तो साइन ही होगा ना, यहाँ पे भी साइन, 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं, बताइएगा जरा। 1 माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू कितना, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस कॉस बीटा का वैल्यू कितना, 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। चलो, तो इसके बाद क्या कर सकते हो आप, इसके बाद क्या कर सकते हो कि
यहाँ हो जा रहा है आपका 4, यही ना। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस क्यों लिख रहा हूँ मैं, साइन ही है। साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 का वैल्यू कितना, 5/8 4 जा 32, 5/32। तो बस इसका स्क्वायर रूट ना निकाल देना है। साइन अल्फा साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √5/32। कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, ये वाला, चेक करो आ जा रहा है, बोले √5/4 हाँ सर। √2 आ रहा है, चेक करो। यस सर। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। नहीं ना। अब इस बार जब x = 1 पुट किया ना आपने, तो दूसरा वाला जो है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और हिंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क ये है कि x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1। आप ये एज्यूम, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि सर आप क्या धारणा से मतलब क्या बेसिस से आप इसे x का वैल्यू 1 पकड़ ले रहे हैं, x का वैल्यू -1 पकड़ ले रहे हैं। तो यही बेसिस है। बेसिस क्या है हमारा कि हमें निकालना था साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। तो हमें किसका जरूरत है, 1 - cos अल्फा 1 - cos बीटा, तो वो दे देगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब जब हमको कॉस का जरूरत है, तब पक्की बात रही होगी कि जब कॉस की हमें जरूरत पड़ रही है तो हम किसको एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे प्लस वाले वैल्यू को, यानी 1 + cos अल्फा। अब 1 प्लस तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू माइनस दे दे, तो माइनस दे दे तो माइनस कॉमन ले लिया, 1 + cos अल्फा आ गया, उसी तरह माइनस कॉमन ले लीजिएगा वहाँ, तो फिर से माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप सबको? हाँ सर, हाँ सर। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, आशा करते हैं आप लोग बना लोगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर मैं आ जा रहा हूँ 27 के पास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा ट्रिकी है। 27 to 29 एक साथ था ये, तो मैंने अलग अलग पार्ट में एज्यूम किया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अलग से सॉल्व करवाया जा सके। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 27 आप सॉल्व करें। इसे कहता है x का जो वैल्यू है वो 1 - e² है। e कोई कांस्टेंट है, e कोई कांस्टेंट है। Has everybody understood? That's what I'm asking. Yes sir, yes Tan sir. square x is given as 1 - e², right? And over here what we have done, we have taken sec x common. If we are taking sec x common, so it will be tan cube x and cot x. So it will be tan square x, क्योंकि tan x and cot x gets cancelled. Okay, so 1 + tan square x, 1 + tan square x is nothing but sec square x, और उसके बाद sec x तो पहले से था, so sec square x and sec x will give you what, sec cube x, and you already know the value of sec square x from here. Assume this thing like 1 + sec square x, sorry, sec square x minus 1, right? Sec square x minus 1, and after assuming the value you can get the answer from here. Sec square x minus 1 equals to this, so sec square x will be written as 2 - e², and after that the value will be taken out as answer. So this is the answer. Chalo, ठीक. Moving to the next question. The next question is, now tell me how to solve this one. Cos 2x. Cos 2x कैसे निकाला जा सकता है? If sec x का value already सर 1 - tan square x by 1 + tan square x করে দেবো, তাহলেই হয়ে যাবে। Exactly, 1 + tan square 1 - tan square x, मैं हर बार प्लस By 1 पता नहीं + tan क्यों ले square x। लेता हूँ, है এটা ना। তো ইজি ছিল। ठीक है, हाँ, এটা हाँ। तो एकदम ही इजी, फॉर्मूला चलो डायरेक्ट। ठीक ठीक ठीक। यहाँ क्या हो जा रहा है, 1 - tan square x 1 + tan square x, बस पुट करते हैं, हो गया। ठीक है, कौन सा স্যার ऑप्शन आ रहा है? তারপরটাও ইজি আছে স্যার। अच्छा, उसके बाद वाला भी তারপরটা easy তো है, স্যার তো পেয়ে গেছি। হ্যাঁ স্যার sec sec square x কমন तो নিয়ে নিন, कॉमन ही ले लीजिए, हाँ কমন নিয়ে exactly। নিন, ব্যাস বাকিটা স্যার tan चलिए, square x হয়ে গেল। हाँ हाँ हाँ, হ্যাঁ ठीक। স্যার। तो ये भी देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। ওই चलिए তো স্যার एकदम इजी 2 था, - e² দিয়ে যেটা আছে ওইটাই হবে। 2 - e², ये वाला
क्योंकि माइनस कॉमन जाएगा क्या? হ্যাঁ স্যার মাইনাস কমন আসবে ওটা স্যার দাঁড়ান এক মিনিট স্যার স্যার এ আসছে স্যার ই স্কোয়ার মাইনাস টু ই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান अच्छा ये वाला आ रहा है, चलिए হ্যাঁ স্যার এ আসছে স্যার समझ में आया आप सभी को? क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट वन। क्लियर सर इजी था ये सब, है ना? हाँ सर हाँ सर आपको फॉर्मूला याद है तो इजी था। अच्छा ये तो क्वेश्चन हो ही गया। चलिए तो बस यही सारे क्वेश्चंस रहेंगे आप सबके, ठीक है? आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया है, ठीक है? हाँ सर कुछ क्वेश्चन शायद बचा हुआ है। ये क्वेश्चन हम लोग किए थे 8 नंबर। 8 नंबर आपने किया है क्या? चेक करें। नहीं No, किया, sir. शायद नहीं किया। नहीं सर नहीं 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 किया ना आपने? So they have asked you what? They have told you that A is an angle in the fourth quadrant. सारे वैल्यूज A के देखिए फोर्थ ही क्वाड्रेंट में है कि नहीं है? है ना? 300 का मतलब क्या हो गया? 300 का मतलब हो गया, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2 पाई माइनस 60। इसको मैं लिख रहा हूँ 2 पाई, अच्छा 2 पाई तो नहीं लिख पाऊंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस 45, यही तो 315 कितना आ रहा है? 270 प्लस आ रहा है ना 45, चेक करें। हाँ सर আসছে ठीक है, इसकी यदि बात करें तो 2 पाई माइनस 30, इसकी यदि बात करें तो कितना आ जा रहा है? 2 पाई, अच्छा 2 पाई तो 2 नहीं पाई है। माइनस 15 अच्छा 15 हो रहा है तो 15 कैसे लोगे? 15 एंगल तो नहीं एज्यूम नहीं नहीं करने सर से ही नहीं ले बेहतर है। पाएंगे अच्छा तो अच्छा हमारा 270 से कुछ किया जा सकता है? 3 पाई बाई 2 प्लस कोई एंगल बताइएगा जरा। सर 75 होते पारे अच्छा 75 75 वाला আছে एंगल सर आपको पता नहीं है ना? नहीं सर 75 वाला एंगल पता है? अच्छा चलो इसको थोड़ा देर बाद देखते हैं। इन तीनों को ऐसी देखो वैल्यू, इन तीनों का वैल्यू देखने के बाद आंसर कितना आ रहा है। तो सारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, सारा जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही वैल्यूज है, राइट? जब फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज है तो यहाँ है tan और cot, तो tan और cot तो डेफिनेटली माइनस ही देगा, tan और cot डेफिनेटली माइनस ही देगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है? ऑप्शन से क्या आंसर निकाला जा सकता है बताओ? ऑप्शन से क्या आप आंसर निकाल सकते सर हो? वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि आंसर कौन सा होगा। एग्जैक्टली ये तीनों वैल्यूज ही पुट करके देख लेते हैं, जो आएगा बस वही आंसर, यही ना? चलिए पुट कीजिए। ये क्या होमवर्क दिया जा सकता है? कोई तो दिक्कत नहीं है, नहीं सर ये प्रॉब्लम नहीं होगा सर। है ना? तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज इतना ही दूर तक रहा, हाँ सर होमवर्क था वो ठीक है? इसे मैंने अरे, ट्रिक प्रचुर बता easy दिया है। कैसे करना है। सारे एंगल को एज्यूम कर लीजिए, इसको जो है बाद में सॉल्व कीजिएगा। या तो ये 15 पकड़िएगा या तो 75 पकड़िएगा, जो भी है 15 ही एज्यूम कीजिएगा। तो 15 वाला वैल्यूज आपको पता चल जाएगा कैसे, जो साइन वाला मल्टीपल एंगल मतलब सब मल्टीपल एंगल का मेथड से, ठीक है? तो वहां से आप निकाल लीजिएगा। तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले इन तीनों ऑप्शन से ही खेलने की कोशिश कीजिएगा। आशा करते हैं यही तीनों में से कोई एक आंसर होता होगा, ठीक है? चलिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर नहीं होगा तो 345 ही आंसर होगा। हाँ यदि नहीं होगा तो फिर 345 होगा जी, हो सकता है, ठीक है? सो आज तक की कहानी यहीं तक रही। आप लोगों की सारी ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन ओके सर जितना था लगभग हमने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है? सर हाँ बोलिए। सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तो एक भी नहीं हुए। हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन আগের দিনও হয়েছিল ভাই 2018 2019 क्या नहीं बात सर। कर रहे हैं आप? हाँ सर बोलिए। ये तो हुए हैं सर आपने पाथफाइंडर से कराना शुरू किया था स्टार्टिंग में, तो सर वही स्टार्टिंग के हुए थे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के। प्रीवियस ईयर जो बाकी के वो नहीं हुए। क्या बात करे, सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना सारे पाथफाइंडर से ही है। आप बुक से मिला लो सारे क्वेश्चंस। मैंने টোটাল हाँ, आपको नहीं স্যার কি বই স্যার আমি বলছি কি তো যতগুলো বইটা কি বলছেন আমি বলছিলাম যতগুলো কোশ্চেন আমি করিয়েছি সবগুলো হচ্ছে পাথফাইন্ডারের কোশ্চেন, ঠিক আছে? আর টোটাল মোটামুটি আচ্ছা। 30 to 35 কোশ্চেনস আমি করিয়ে ফেলেছি,
इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर के थे, ऐसी कोई बात नहीं है। और लगभग नहीं बोलकर मैंने 35 टू 40 क्वेश्चंस तक, लाइक 35 टू 40 क्वेश्चंस तक आप लोगों को करवाया जा चुका है। ठीक है, समझे?